Okay, but we are starting with page number 96 of your NCERT book, and the topic for today is the DNA. Yesterday I have discussed with you that there are two types of nucleic acid. Okay, one is DNA and another is RNA. So DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. ठीक है बेटे, the basic difference between DNA and RNA is the type of sugar that is present in the nucleic acid. Okay, you have learned in the chapter biomolecules. In case of DNA, the type of sugar present is deoxyribose sugar. Okay, बेटे, and in case of RNA, the sugar present, pentose sugar present is ribose sugar. Another very important thing that I have discussed with you is कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड ऑलवेज हैज थ्री कंपोनेंट्स. वन इज अ पेंटोस शुगर, ओके बेटे, अनदर इज द फॉस्फेट ग्रुप व्हिच इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. ठीक, एंड थर्ड वन इज द नाइट्रोजेनियस बेस. तो मैंने अब तक आपको ये बताया है कि नाइट्रोजेनियस बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स. दीस में बी पुरीन्स और दीस में बी पिरिमिडिन्स. तो purines, they are of two types and they are adenine and guanine. Okay बेटे, उसी तरह से pyrimidines जो है they are also of two types. तो adenine और thymine जो है उनका आपस में रिलेशन है. तो देखो adenine जो है वो purine के अंदर आता है, तो thymine जो है वो किसके अंदर आता है, pyrimidine के अंदर आता है. ओके बेटे, उसके बाद अगर हम guanine की बात करते हैं तो guanine is a purine and the corresponding pyrimidine यहाँ पे क्या है, तो guanine always bind with cytosine. And another very important thing that I have told you, that is कि in case of RNA, ठीक है, one additional pyrimidine is present and that is uracil, because thymine is not there in case of RNA. ये चीज आप याद रखेंगे कि RNA में thymine की place पे क्या present है, uracil is present. So adenine is supposed to bind with uracil in case of RNA, but in case of DNA, adenine must bind with the thymine. Okay, so some of the students are thinking what is uracil. ठीक है, uracil is a modified form of thymine itself. Thymine जो है उसी के अंदर कुछ modifications हैं और उसी से क्या बना है, uracil बना है. uracil के बारे में और ज्यादा मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, यूरासिल जो है उसको आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि इट इज 5 मिथाइल यूरासिल. ठीक है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, थाइमिन की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, पर आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ थाइमिन. ओके बेटे, नाउ लुक एट योर बुक. आई एम ऑन पेज नंबर 96. टॉपिक इज द डीएनए. सो कहते हैं कि व्हाट इज अ डीएनए. सो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, if he has used the term polynucleotides, this means poly means many and nucleotides means monomeric units of nucleic acids. So many nucleotides, they join together with each other with the help of a specific type of bond, and you also know the name of the bond. ठीक बेटे, तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं उनकी मोनोमेरिक यूनिट्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, एंड न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में बाइंड होती है with the help of a specific type of bond, and here the specific type of bond is the phosphodiester bond. ठीक है, how this bond it actually develops, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि if two adjacent nucleotides they get binded with each other, तो in the first nucleotide, ठीक है, you must have to remember carbon number 3, and in the second nucleotide, उसके साथ जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका याद रखेंगे, उसका कार्बन नंबर 5 है. तो कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 जो है उसके बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता है, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. ठीक बेटे, बिकॉज देयर आर टू चेन्स ऑफ यू कैन से डीएनए. डीएनए की दो चेन्स हैं, टू हेलिक्स हैं. तो अगर एक साइड जो है, एक स्ट्रैंड जो है उसके टू न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डेवलप होता है, तो सेम काइंड ऑफ बॉन्ड इट आल्सो डेवलप इन द एडजेसेंट चेन टू. ठीक, तो इन दिस वे अ डाइन्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड, एंड सिमिलरली द अनदर न्यूक्लियोटाइड इट गेट्स बाइंडेड विद द प्रीवियस वन, that again by the phosphoester linkages on both side of the DNA strands. ठीक, तो इसीलिए हम उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं.
ठीक बेटे। उसके बाद देखिए क्या बताया उसने कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डीएनए एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द लेंथ ऑफ द डीएनए। तो डीएनए की लेंथ से हमारा क्या मतलब है कि लेंथ ऑफ द डीएनए इज एक्चुअली द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन दैट डीएनए चेन। उस डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं वो एक्चुअली उसकी लेंथ जो है उसको फॉर्म करते हैं। तो दीज वेरिएशंस आर सीन इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का जो नंबर है वो वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको उसने एग्जांपल दिए हैं कि इफ यू कंसीडर द बैक्टीरियोफाज, व्हाट आर बैक्टीरियोफाजेस? बैक्टीरियोफाजेस आर स्पेशल टाइप ऑफ वायरसेस दैट कॉज इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको बैक्टीरियोफाजेस कहते हैं। तो देयर इज वन बैक्टीरियोफाज एंड नेम ऑफ द बैक्टीरियोफाज इज 5174, ठीक है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स उसमें प्रेजेंट है? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। ओके बेटे। उसके बाद कहते हैं कि देयर इज वन अनदर बैक्टीरियोफाज एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरियोफाज इज लैम्डा बैक्टीरियोफाज। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन लैम्डा बैक्टीरियोफाज? दैट इज 48,502 base pairs. Okay beta, if we consider the bacterium E. coli, Escherichia coli, then कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स उसमें कितने प्रेजेंट है? 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स के प्रेजेंट है। और अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर देयर? तो 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स आर, ठीक है बेटा। ये हैप्लॉइड कंटेंट है। अगर हम डिप्लॉइड कंटेंट की बात करेंगे तो आप उसको डबल कर लेंगे। If haploid content has 3.3 10⁹ base pair, तो this means diploid content जो है उसका डबल हो जाएगा 6.6 into 10⁹ base pair जो है वो डिप्लॉइड कंटेंट में होंगे ह्यूमन डीएनए, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा डेटा याद रखेंगे। Now I am taking with the main topic and that is the structure of the polynucleotide chain. So what is a polynucleotide chain? ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो डीएनए में भी प्रेजेंट है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द आरएनए। तो पॉली मींस many and nucleotide means when so many nucleotide units they join together with the help of phosphoester linkages. Okay beta, so first of all we know that the nucleic acids they actually consist of monomeric units and which are known as the nucleotide. Okay beta, so there is a basic difference between the nucleotide and the nucleoside. So if I am talking about a nucleotide, then you must remember that three things are there in the nucleotide. A pentose sugar is there, which is deoxyribose in case of DNA and ribose in case of RNA. And beside this, we have phosphate group that is attached with this pentose sugar. And another thing is the nitrogenous bases are also there. Okay, but these nitrogenous bases may be adenine, thymine, guanine, cytosine. So one thing you must take it in your mind कि in our DNA strand, ठीक है, if on the one strand the purine is there, then on the corresponding strand or the adjacent strand that purine is going to be bind with the pyrimidine. For example, if adenine is present on the first strand, then this adenine must be bind with thymine if it is DNA. Okay, but another if guanine is there in the first strand, then guanine is supposed to be bind with the cytosine that is present on the corresponding strand of the adjacent strand. Okay, another thing I have explained कि if DNA is there then no problem. If RNA is there then in place of thymine, thymine की जगह पे in case of RNA what is present? Uracil is present. So uracil is a modified form of the thymine itself. Okay, see the paragraph, second paragraph, page number 97. What is this uracil? It is 5-methyl. ठीक है, 5-methyl uracil के नेम से हम इसको जानते हैं। ये सिर्फ मॉडिफिकेशन थाइमिन में होने की वजह से फॉर्म होता है and it is present in RNA because RNA is a primitive type of genetic material and came into existence before DNA. Okay, because of its lesser stability, क्योंकि इसकी stability RNA की कम है, so that's why RNA is found in the primitive type of organisms whose lifespan is of less duration.
but later on so many modification it happens in the RNA, and then this RNA gets converted into DNA, and DNA is found in the advanced organism because of its more stability and less reactivity. Okay, student, another very important thing is कि first of all whenever a nucleic acid is going to be formed, ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डेवलप नहीं होते. सबसे पहले हमारे पास there is a pentose sugar, and what is going to be happen on this pentose sugar, तो सबसे पहले जो pentose sugar है उसके साथ आके phosphate group bind करता है. ठीक बेटे, तो pentose sugar अगर मैं बोल रही हूँ तो how many carbon atoms are there in the pentagon, तो 5 carbon atoms are there. ओके, तो 5 कार्बन एटम्स में कार्बन नंबर 5 जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कार्बन नंबर 5 जो है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप इट गेट्स बाइंडेड. ठीक, बिकॉज द फॉस्फेट ग्रुप इट गोइंग टू बी बाइंड विद द राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, व्हिच इज अ काइंड ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट. सो दिस हैपन विद द हेल्प ऑफ ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके बेटे, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इट गेट्स डेवलप्ड. उसके बाद देखिए फिर वो कहते हैं कि when the phosphate group it gets bind with the pentose sugar, then the nucleoside unit is formed. Okay, तो if we have 4 bases, अगर हमारे पास 4 bases हैं, adenine, guanine, cytosine, then we have thymine. Okay, तो अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, then you know that the phosphate group when it binds with the pentose sugar, then a nucleoside is formed. तो हम इसको प्रोनाउंस भी अलग अलग तरीके से करते हैं. ठीक है, तो अगर वो कहता है कि एडेनिन जो है उसके साथ जो है आके फॉस्फेट ग्रुप बाइंड कर जाता है. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होंगे. देखो सभी स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 1 देखेंगे, उसमें उसने लिखा हुआ है नाइट्रोजेनियस बेस इट गेट्स बाइंडेड विद द पेंटोज शुगर थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, लेटर ऑन फॉस्फेट ग्रुप इज बाइंडेड. A little bit mistake is there. So when the nitrogenous base it gets binded with the sugar, तब न्यूक्लियोसाइड बनता है, and phosphate group बाद में अटैच होगा तब न्यूक्लियोटाइड बनेगा. ये करेक्ट कर लेंगे बेटे. तो देखो एडिनोसाइन उसका नेम हो जाएगा. अगर हमारे पास एडेनाइन बेस है और उसके साथ जो है कहते हैं कि पेंटोज शुगर के साथ एडेनाइन बेस जो है वो आके बाइंड हो गया है, तो नेम हो जाएगा एडिनोसाइन. और अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो यू नो दैट इन केस ऑफ डीएनए राइबोस शुगर इज देयर, तो यहाँ पे उसका नेम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन. ठीक है, इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड इफ द नाइट्रोजेनियस बेस इज गुआनिन. ठीक है, तो आप उसको न्यूक्लियोसाइड में कैसे बुलाएंगे, तो अगर गुआनिन इज द नाइट्रोजेनियस बेस इट बाइंड्स विद द पेंटोज शुगर, तो उसके बाद वो कहते हैं उसका नेम हो जाता है गुआनोसाइन, एंड इन केस ऑफ डीएनए नेम हो जाएगा डीऑक्सी गुआनोसाइन. ओके, अगर हमारे पास बेस है नाइट्रोजेनियस बेस साइटोसाइड, तो उस केस में इन केस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोसाइड को हम बोलेंगे साइटोडाइन. ठीक है, एंड इन केस ऑफ डीएनए हम उसको बोलेंगे डीऑक्सीसाइटिडाइन. और अगर हमारे पास जो है फोर्थ हमारा बेस है थाइमीन. जी बेटे, तो आपको पता है कि आरएनए के केस में थाइमीन की जगह पे व्हाट इज प्रेजेंट, यूरेसिल इज प्रेजेंट. ठीक है, पर डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो कौन सा बनेगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड है वो बन जाएगा डीऑक्सीथाइमिडाइन. पर यूरासिल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए, तो यहाँ पे हम जो है न्यूक्लियोसाइड जो है उसको बुलाएंगे यूरिडाइन. ओके बेटे, तो लास्ट थिंग इज कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है. तो नाइट्रोजेनियस बेस when it gets bind with the sugar, the nucleoside is formed, and later on when the phosphate group is bind at the 5 carbon of the pentose sugar, then the corresponding nucleotide is formed. ठीक बेटे, हमेशा याद रखेंगे कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ बाइंड करता है, 5 कार्बन के साथ बाइंड करता है. ठीक, तो इसीलिए when you see the structure of the polynucleotide chain, what you observe that there are 2 strands in the DNA. So one strand runs in different direction and other strand it runs in a different direction. Suppose one strand is running in 3' to 5' direction. ठीक है, एक स्टैंड जो है उसको हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं कि ये इसका 3' एंड है, एंड ऊपर वाला एंड उसका 5' एंड है, एंड साइड वाला जो स्टैंड है डीएनए का उसको हम लिखते हैं नीचे वाला एंड जो है इसका 5' एंड है, एंड ऊपर वाला एंड उसका 3' एंड है. ओके बेटे, तो दिस मींस वन स्टैंड
which is the first one runs in 3' to 5', another it runs in 5' to 3'. So why we call these ends as 3' end or 5' end? So you must remember, if there are 5 carbon atoms in the pentose sugar, then that stand whose polarity starts from 3' to 5' end. This means at the 3' end, free hydroxyl group is present. तो तीसरा नंबर का जो कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप जो है वो हैंगिंग फॉर्म में है, उस एंड को हमने कौन सा एंड बोला है? 3' एंड बोला है. एंड व्हाई द अदर एंड इज नोन एज द 5' एंड? तो 5' एंड जो है उस एंड को हमने बोला है जिसमें वो कहता है कि कार्बन नंबर 5 जो है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है. ऑलवेज रिमेंबर इन अ डीएनए स्टैंड, ठीक है, one end is always known as the 3' end, and 3' end is actually that end which has hydroxyl group. It is hanging with the carbon number 3 of the pentose sugar. And what is the 5' end of that stand? 5' end of that stand is actually the stand where at carbon number 5 the free phosphate group is attached. Okay बेटे, so this is all about the structure. फिर मैंने आपको कहा था कि when one nucleotide it gets attached with the another nucleotide, जब एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसने दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होना है, तो देखो इमेजिन करो कि वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इट हैज द पोलैरिटी इन 3' टू 5' डायरेक्शन. अगर वो 3' उसका एक एंड 3' है और दूसरा एंड उसका 5' है, तो उसके साथ अगर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाइंड होगा तो इसका तो देखो फर्स्ट वाले का 5' एंड है एंड दूसरा जो न्यू उसके साथ बाइंड होगा उसका 3' एंड आएगा. तो हमेशा याद रखिए द फॉस्फोएस्टर लिंकेज इट ऑलवेज डेवलप्स बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5. ठीक है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज हमेशा कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में डेवलप होता है. ओके बेटे, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. आई एम ऑन पेज नंबर 97. In short, I am going to repeat again what I have discussed with you. I have discussed with you that nucleic acids are actually the polymers of what? Nucleic acids are actually the polymers of nucleotides. When so many nucleotides they join together with the help of phosphoester linkages, they form the polynucleotides or the nucleic acids. Okay, beta. So in a nucleic acid, if I am talking about DNA, 3 things are there. Pentose sugar is there. That is a sugar which consists of 5 carbon atoms. Another is phosphate group is binded with that sugar and nitrogenous base is also binded with that sugar. ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, याद रखिएगा. न्यूक्लियोसाइड कब फॉर्म होता है? जब नाइट्रोजेनियस बेस पेंटोज शुगर के साथ बाइंड करता है. नाइट्रोजेनियस बेस कोई भी हो सकता है. इट में भी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, पुरीन भी हो सकता है, पिरिमिडीन भी हो सकता है. So whenever a nitrogenous base it gets bind with a pentose sugar, so always a nucleoside is formed. So we have 4 type of nitrogenous bases: adenine, thymine, guanine, cytosine. Okay, बेटे. So in case of nucleoside, ठीक है, how we call this nucleoside in case of RNA and in case of DNA. So if the nitrogenous base is adenine, तो हम nucleoside जो है उसको adenosine कहते हैं in case of RNA. And in case of DNA we called it as deoxy. ठीक है, deoxy वर्ड आप लगा लोगे, बाकी सारी चीज सेम रहेगी. ठीक है, तो deoxy adenosine. अगर हमारे पास guanine है तो guanosine वर्ड हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में एंड वहां पर DNA के केस में deoxy guanosine. अगर हमारे पास थाइमिन है तो थाइमिडाइन हम वर्ड यूज करेंगे, deoxy थाइमिडाइन हम वर्ड यूज करेंगे डीएनए के केस में. पर आपको पता है कि आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है, तो वहां पे हम न्यूक्लियोसाइड को यूरिडाइन बोलेंगे. ओके बेटे, इसी तरह से फोर्थ वाला जो है उसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे. तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हेन 2 न्यूक्लियोटाइड्स दे गेट बाइंडेड विद ईच अदर, तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इट हैज इट्स 5' end, another nucleotide it has its 3' end. So 3' end is actually that end of the ribose sugar or deoxyribose sugar where carbon number 3 is present and that carbon has free hydroxyl group यानी OH. ठीक है, 5' end हमने किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के उस एंड को बोला है जहां पे कार्बन नंबर 5 के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है?
फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो इमेजिन करिए कि अगर डीएनए के अंदर दो स्टैंड्स हैं, एक स्टैंड को मैं नीचे से 3' to 5' लिखती हूँ एंड दूसरे को मैं 5' to 3' लिखती हूँ। तो दिस मीन्स फर्स्ट स्टैंड जो है उसका फर्स्ट एंड 3' एंड है और उसका जो सेकंड एंड है वो 5' है। और जब इस तरह का न्यूक्लियोटाइड दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करेगा, then that nucleotide it's get binded with the previous one with its 5'. Always the phosphodiester bond it dwells between the 3' and 5'. ओके बेटे, तो 5' एंड पे हमेशा फ्री फॉस्फेट ग्रुप हैंगिंग फॉर्म में होता है एंड 3' एंड पे हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाउ आई एम प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 97, पैराग्राफ नंबर 2। व्हाट इज गिवन इन केस ऑफ आरएनए? ठीक है, सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन केस ऑफ आरएनए एंड दैट गिव्स इट हाई रिएक्टिविटी एंड लेसर सॉरी बेटे द लेसर स्टेबिलिटी। ठीक है, आरएनए की ज्यादा रिएक्टिविटी क्यों है और स्टेबिलिटी जो है उसकी कम क्यों है? तो देखो उसके बारे में देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दिस। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू सी कार्बन नंबर 2 ऑफ द आरएनए, ठीक है, तो इन कार्बन नंबर 2 ऑफ द आरएनए एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट। one hydroxyl group is already there, but along with that hydroxyl group one more hydroxyl group is present on carbon number 2, and because of more hydroxyl group, ठीक है, the reactivity of RNA is more. So whenever RNA comes in contact with any of the chemical species, it reacts very fast. Okay beta, so because of its higher reactivity its stability is less. And another thing is कि अगर हम RNA जो है इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें, then you know that in case of RNA thymine is not there, a modified form of thymine is there which is 5-methyl uracil। ठीक बेटे, तो यूरासिल जो है उसके कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और वो भी जो है इसको एक्स्ट्रा रिएक्टिव बनाता है। तो बिकॉज रिएक्टिविटी इज मोर, किसी भी स्पीशीज की अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी दिस मींस दैट स्पीशीज इज नॉट अ स्टेबल स्पीशीज। So that is the reason why RNA it is found in primitive type of organisms which have lesser lifespan। ठीक बेटे, and यही कारण है कि RNA it acts as a genetic material in some of the species or you can say few species, whereas DNA is the genetic material in majority of the species। Okay बेटे, next is there is a historical account that is present and here he has discussed about the scientist and the name of the scientist is Frederick Meisker। ठीक है, Frederick Meisker in the year 1869। ठीक है, तो in the year 1869 the scientist Frederick Meisker he was first discovered DNA। what he said that DNA was a acidic substance। ओके, डीएनए जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, उसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर। and here he found this DNA, so he found this DNA in the nucleus of the cell। what he said कि this DNA which is actually a acidic type of substance, it locate itself inside the nucleus of the cell though its dimensions are very large। ठीक है, तो कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसकी डायमेंशंस जो है वो डीएनए की डायमेंशंस जो है उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है एंड डीएनए जो है वो एक ऐसा पॉलीमर है जो ह्यूज डायमेंशंस रखता है एंड द साइंटिस्ट वाज वेरी मच सरप्राइज्ड दैट हाउ दिस डीएनए व्हिच हैज लार्जर डायमेंशंस दे गेट फिटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ओके, तो एट दैट टाइम द साइंटिस्ट फ्रेडरिक he gave an idea that this DNA is actually present in the nucleus of the cell, but he is not able to give the answer, ठीक है, about the structure of the DNA। वो DNA जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बता सका। तो for a longer period of time because of lesser technical advancements, ठीक है, there is not a characteristic discovery seen in case of structure of DNA। डीएनए के स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में काफी समय तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई। देन इन द ईयर 1953 a landmark discovery is seen in the field of chemistry। ठीक है, you have also learned in the chapter atomic structure last year in chemistry textbook। you have also heard the name of these two scientists, Maurice Wilkins
and another is Rosalind Franklin. ठीक है, they are associated with a landmark discovery, and that is X-ray diffraction method. So by this landmark discovery, two another biologists, ठीक है, their name were Watson and Crick, James Watson and Francis Crick. With the help of these two scientists, or you can say chemists, ठीक है, Rosalind Franklin and Maurice Wilkins, इनकी हेल्प से उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड जो है उसको यूज किया, and with the help of this X-ray diffraction technique, they become successful in finding out the structure of the DNA. And what Watson and Crick said, कि this DNA, which is actually a huge polymer, ठीक है, this DNA has a double helical structure. So at that time, it is popularly known as the double helical model of DNA. ओके, तो उन्होंने ये बताया कि डीएनए जो है वो एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज है, उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ स्पाइरली बाइंडेड हैं. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दीस टू साइंटिस्ट, ठीक है, टेल्स अस, एंड दैट इज if you see one strand of the DNA, then the nitrogenous bases that are located on the first strand of the DNA, how this nitrogenous bases gets binded with the adjacent strand of the DNA. So they said कि there are complementary bases that are present on the adjacent strand. ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अगर एक स्ट्रैंड पे नाइट्रोजेनियस बेसिस जिस तरह के प्रेजेंट है, उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस दूसरे स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है. तो इसीलिए when the DNA it gets open, then first strand of the DNA it acts as a parental strand, a guiding strand for the synthesis of the new daughter strand, because what they observe that in the parent DNA, ठीक है, the nitrogenous bases that are present on the first strand, their complementary nitrogenous bases are present on the adjacent strand. So when both the strands during the process of DNA replication they open, then the bases that are present on the first strand, on the basis of those nitrogenous bases, the corresponding complementary bases, they arrange themselves on the daughter strand. ठीक बेटे, अब सब बच्चे सोच रहे होंगे कि अपने आप ही बेसिस कैसे अरेंज हो जाएंगे डॉटर स्ट्रैंड के अंदर. तो देखो सिंपल सी बात है, when the DNA helix is open, the first strand whose polarity is in the 3' to 5' direction, and then another strand whose polarity is in 5' to 3' direction. Both the strands they act as guiding strand, ठीक है, for the new developing daughter strand. तो देखो क्या होता है, अगर पहला स्ट्रैंड जो है उसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन बेसिस प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि उससे जो ओपन हुआ दूसरा स्ट्रैंड है उसमें एडेनिन किसके साथ बाइंड होगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड होता है, ग्वानिन ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन. ठीक बेटे, तो उसी तरह से जब नया डॉटर स्ट्रैंड बनना है तो देयर इज वन एंजाइम एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज. तो वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, जो सेल है उसमें जो प्रेजेंट नाइट्रोजेनियस बेसिस है उनको पिक करता रहता है और रीड करता है कि व्हाट नाइट्रोजेनियस बेसिस आर प्रेजेंट ऑन द parent strand which act as guiding strand. If adenine is there, तो डीएनए पॉलीमरेज ने थाइमिन उठाना है, उसको एडेनाइन के साथ बाइंड करना है. If guanine is there, तो आपको पता है कि guanine को किसके साथ बाइंड करना है, साइटोसिन के साथ बाइंड करना है. ठीक है, तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग डॉटर स्ट्रैंड जो है वो तैयार होता रहता है. बट लेटर आई विल डिस्कस विद यू, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो जो वर्क करता है उसकी वर्किंग जो है वो भी एक खास तरह की होती है. ठीक है, एंड हाउ दैट एंजाइम इट एफिशिएंटली वर्क फॉर बोथ द स्ट्रैंड. ठीक है, फर्स्ट स्ट्रैंड whose polarity is in 3' to 5' direction and another strand whose polarity is in which direction, 5' to 3' direction. So when this DNA polymerase it binds the corresponding bases of the daughter strand, ठीक है, तो 3' 5' डायरेक्शन में एफिशिएंटली वर्क करता है, पर 5' to 3' डायरेक्शन में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वो धीरे धीरे वर्क करता है. तो इस तरह से टू डॉटर स्ट्रैंड्स जो हैं वो डीएनए के तैयार होते हैं. ठीक बेटे, देयर वाज अनदर साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज एरविन चरगाफ. ठीक है, एंड एरविन चरगाफ he gave a special rule that is related with the ratios of the nitrogenous bases. तो एरविन चरगाफ जो थे उन्होंने ये कहा
कि as you know there are 4 nitrogenous bases: adenine, thymine, guanine, cytosine. So what is said, the scientist said कि all of these nitrogenous bases, ठीक है, हमेशा इनमें से एक पुरीन है, एक pyrimidine है. तो you know that adenine is going to be bind with thymine and guanine is going to be bind with cytosine. So what Chargaff said in his rule, which is known as Chargaff rule, he said that the ratio of adenine and thymine and guanine and cytosine is always equal to 1. ठीक है, तो उसने कहा कि अगर एडेनिन और हम थाइमिन की बात करते हैं या फिर ग्वानिन और साइटोसिन की हम बात करते हैं तो उनकी रेशियो हमेशा किसके बराबर है, 1 के बराबर है. ठीक है बेटे, अगर वो कहते हैं कि एडेनिन और थाइमिन जो है वो टोटल मिला के 100 के बराबर है, and I know the concentration of adenine, मुझे एडेनिन की कंसेंट्रेशन पता लग जाती है कि 60% उसमें एडेनाइन है. ठीक है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट, तो मैं फाइंड आउट कर लूंगी कि अगर दोनों का टोटल जो है वो 100 के इक्वल है, एडेनाइन उसमें से 60 है, तो इसका मतलब 100 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा. इसका मतलब 40 जो है उसमें से थाइमिन है. ओके, तो चरगाफ रूल जो है वो ये कहता है कि फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are always equals to 1 and it is a constant type of ratio. Okay बेटे, तो see here the structure I have written nitrogenous bases के बारे में लिखा है, purines, pyrimidines are there. ठीक है, तो purines जो होते हैं वो भी heterocyclic structural compounds होते हैं. 2 types of purines are there, adenine and guanine. Then we have pyrimidines. So pyrimidines are the single ringed structures. And we again have 2 types of pyrimidines, cytosine and thymine. Okay, but what are nucleosides? The compounds formed by the combination of pentose sugar with the nitrogenous base. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा what I am saying. So you must remember कि when a nitrogenous base it gets bind with pentose sugar, a nucleoside is formed. ठीक है, so a nitrogenous base attached with carbon 1 of the pentose sugar by an glycosidic linkage. ठीक है, कार्बन नंबर 1 जो होता है पेंटोज शुगर का, उसके साथ नाइट्रोजनियस बेस आपके बाइंड करता है. किस बॉन्ड से बाइंड करता है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज देयर. ठीक बेटे, तो इन केस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनियस बेस. तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में दिखाया हुआ है. तो देखिए यहाँ पर आपको नाइट्रोजनियस बेस नजर आ रहा है, आपको शुगर मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं. तो कार्बन नंबर 5 जो है उसके ऊपर CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो आपको क्या था, कार्बन नंबर 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड का और कार्बन नंबर 5 दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो जाता है कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 में से, एंड उसमें जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है आके अटैच हो जाता है एंड इस तरह से जो बॉन्ड डेवलप होता है डार्क बॉन्ड इज नोन एज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. ठीक है, कुछ ही दिनों में मैं आपको ब्लैक बोर्ड में एक बार फिर से बताऊंगी व्हाट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. So here I have introduced another term that is central dogma. ठीक है, तो after the double helical model of the DNA, the scientist Francis Crick he has introduced a new term central dogma. ठीक है, what this scientist said, Crick जो है उन्होंने ये कहा कि हमेशा genetic information जो है वो unidirectional manner में flow करती है. तो हमेशा DNA से RNA और RNA से क्या बनती है, प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है बेटे, तो whenever the DNA helix it opens, messenger RNA is formed. The process is known as transcription, and from messenger RNA later proteins are formed and the process is known as translation. Okay, तो यहाँ तक आप रीड कर लेंगे. Okay students, so tomorrow we will discuss